جی پیارے ویلکم بیک. آئی ہوپ آپ کو میری آواز یقیناً آ رہی ہوگی. اللہ کے حکم سے واپس آغاز کرتے ہیں جہاں پر بات ختم کی. فارمیٹ تقریباً کلاس کیونکہ بنا چکی ہے تو میرا خیال ہے وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم پہلی ٹرانزیکشن پڑھ کر اسے لکھنا سیکھیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ فروٹفل ہوگا. تو بس میں ذرا تھوڑا سا چیک کر لوں پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. چلیں جی, بس 1 منٹ میں شروع کر رہے ہیں فوراً. جناب 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 ٹھیک ہے. اچھا جی, تو آج اتفاق کی بات ہے کہ چلیں جی بہرحال شروع کرتے ہیں. نہیں سر, آپ ابھی 1 2 3 نہ لکھیں, آپ پہلے یہاں دیکھیں میرے ساتھ کام کہ کام ہوگا کیسے. ابھی آپ کچھ 1 2 3 نہ لکھیں. چلیں پہلے ٹرانزیکشن 1 پڑھتے ہیں. صحیح ہے, ٹرانزیکشن 1 ہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, آئیے. کیا لکھا ہے ٹرانزیکشن 1؟ انویسٹڈ کیش ان دا بزنس ₹1 lakh ٹو کمنس. کاروبار شروع کرنے کے لیے کاروبار میں کتنے روپے لگائے؟ 1 lakh روپے. کیا آیا بزنس میں؟ بزنس میں کیا آیا؟ آپ جواب دو جلدی جلدی تم لوگ, تاکہ پھر ہم انٹری دماغ میں سوچ کے اور پھر یہاں بنائیں. جی وقار خالد صاحب فرمائیے. کیش آیا. کیش کے نیچر ایسٹ بڑھے تو ڈیبٹ. کون لے کر آیا کیش؟ کاروبار میں کیش کون لے کر آیا؟ نام سے بتانا. کاروبار میں کیش کون لے کر آیا؟ نام سے بتانا بھائی, نام سے. نام بولو نا. اے کیپٹل, طہیر کیپٹل. تو آج اکاؤنٹ کا نام ہوگا طہیر کیپٹل. اے کیپٹل, صرف کیپٹل نہیں لکھنا اور صرف طہیر بھی نہیں لکھنا, صرف مسٹر اے بھی نہیں لکھنا. پورا کیا لکھنا ہے؟ مسٹر اے کیپٹل, طہیر کیپٹل, اے کیپٹل, کیپٹل اے, کیپٹل طہیر. طہیر آگے پیچھے لکھا جا سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیپٹل اے کیپٹل لکھا جائے گا. اور کیپٹل میں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے پیارے بچوں؟ اضافہ, انکریز. اور کیپٹل انکریز ہو تو ہمیشہ, کیپٹل انکریز ہو تو پیارے بچوں ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے. تو اب آپ انٹری لکھیں گے کس طرح, توجہ چاہوں گا آپ کی. پوائنٹ نمبر 1 ہے, آپ نے یہاں پہ لکھا ڈیٹ کے کالم میں 1. سر ڈیٹ کے کالم میں تو ڈیٹ آنی چاہیے. فی الحال ابھی سوال میں کوئی ڈیٹ وغیرہ دی ہوئی نہیں ہے. جب ڈیٹ دی ہوگی تو اگلے سوالات میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گا. اب جلدی جلدی سنیں کیونکہ میں آپ کو ہوم ورک بھی اسائن کر دوں گا اس کے بعد. اب یہاں پر کیا لکھیں گے؟ کیش. ٹھیک ہے, اور کیش ہوگا بالکل لائن کے ساتھ ملا کر. سن رہے ہیں؟ کیش کا سی ہوگا بالکل لائن کے ساتھ ملا کر. ایگریڈ؟ تو آپ نے یہاں پر لکھ دیا کیش. لکھیں شابش. اور کہا طہیر کیپٹل میں ہو رہا ہے اضافہ. سر یہ آپ نے کیا کیا, اس کو آگے کر کے کیوں لکھا؟ یاد کریں نا کل کی کلاس میں اگر آپ موجود تھے, میں نے کہا تھا ڈیبٹ ہونے والی چیز لائن کے بالکل ساتھ اور کریڈٹ ہونے والی چیز لائن سے تھوڑا آگے. تو اب اگر میں نے اسے اتنا آگے لکھا ہے نا, تو ہر انٹری کے کریڈٹ کو میں اتنا ہی آگے لکھوں گا. سن لیا سب نے؟ ہر انٹری کے کریڈٹ کو میں اتنا ہی آگے لکھوں گا. یہاں کوئی لائن ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ اندازے سے سب کو ایک جیسا لکھیں گے. یعنی انگلش کا لفظ ہے سیمیٹریکل. سیمیٹریکل کا مطلب بالکل سیکوینس میں طریقے سے ہوں گے, سب ایک لائن کو فالو کر رہے ہوں گے. جیسے سارے ڈیبٹ اس لائن کے ساتھ, تو سارے کریڈٹ اس ٹی کو فالو کر رہے ہوں گے. سارے کریڈٹ اس ٹی کو فالو کر رہے ہوں گے. کیا آپ کو میری بات سمجھ آئی ایمانداری سے؟ اوکے. اب اماؤنٹ لکھیں گے. یہاں پر کیا کیا اماؤنٹ آئیں گی؟ کتنے روپے لے کر آیا طہیر؟ 1 लाख. اور اس کی ملکیت میں اضافہ بھی ہوا 1 लाख. سب کو کلیئر ہے الحمدللہ؟ اگر کلیئر ہے تو انٹری بن چکی ہے الحمدللہ. انٹری بنانے کے بعد نیچے کیا لکھتے ہیں؟ انٹری بنانے کے بعد نیچے کیا لکھتے ہیں؟ جلدی لکھ کے بھیجیں. انٹری بنانے کے بعد نیچے کیا لکھتے ہیں پیارے بچوں؟ انٹری بنانے کے بعد نیچے کیا لکھتے ہیں پیارے بچوں؟
नरेशन, भाई स्पेलिंग खुदा का वास्ता वहां से देख लो, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छा इफरा मजहर, आप मुझे एक फेवर दे दीजिए प्लीज, आप एक तो देर से आई हैं आज क्लास में, फेवर मुझे आप ये दे दीजिए कि पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके ना अपने मोबाइल में जो है वो पार्टिसिपेंट लिस्ट में जो जो नाम आ रहे हैं उनकी पिक्चर ले लें, 2-3 पिक्चर्स में आ जाएंगे सारे नाम। पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाएं, जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं उनकी पिक्चर लेके फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा, सही है मेरा बच्चा, जजाकल्ला, शुक्रिया। अच्छा प्यारे बच्चों, वापस अपनी बात करते हैं आपसे। कहा अब क्या लिखनी है, नरेशन, एक्सप्लेनेशन। तो चलिए एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखना क्या बड़ी बात है, इतनी सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ब्रैकेट ऑन की लिखा टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट। मजे की बात यह है प्यारे बच्चों, नरेशन सर इमरान की जागीर नहीं है। नरेशन आप जिस तरह लिखना चाहें लिखें, अंग्रेजी में लिखनी है और मुनासिब। शुरू के 2 लफ्ज पक्के हैं, वो आप हर ट्रांजेक्शन हर नरेशन में लिखेंगे, क्या, टू रिकॉर्ड। और आगे आप ऊपर होने वाले काम को मुख्तसर लफ्जों में लिख के बताएंगे। सुना मैंने क्या कहा, रिपीट कर रहा हूं। नरेशन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, हमेशा हर नरेशन में 2 वर्ड पक्के हैं, क्या, टू रिकॉर्ड। और उसके बाद आगे समराइज्ड वर्ड्स में ऊपर होने वाली बात लिखी जाएगी। तो अगर कोई बच्चा ज्यादा लिखने का शौकीन है अंग्रेजी, तो वो यूं भी लिख सकता है, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय तहीर, टू रिकॉर्ड बिजनेस स्टार्टेड बाय तहीर, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ तहीर, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय तहीर। तो मैंने ये सारे अंदाज आपसे शेयर किए। आवाज स्लो हो गई, अच्छा मेरे मुताबिक तो आवाज बिल्कुल सही जा रही है बेटा, हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ हो। मैं एक बार दोबारा कह देता हूँ आप दोनों के लिए, हम्माद हनीफ के लिए और अनस के लिए, कि नरेशन जो है वो सर इमरान की जागीर नहीं है। नरेशन आप अपनी मर्जी से, नरेशन आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीजें फिक्स हैं। मसलन टू रिकॉर्ड का लफ्ज आपने लिखना है कि आपने रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया, आगे आप शॉर्ट वर्ड्स में लिख के बताएंगे जो भी रिकॉर्ड किया। तो हमने कैश इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की, ये शॉर्टेस्ट वर्ड है। अब अगर कोई बच्चा लिखे टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय तहीर, तो वो गलत नहीं है, वो भी सही लिख रहा है। तो अकाउंट की, अच्छा सर अगर नरेशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, मसला नहीं है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत अंग्रेजी की टांगे टूटी भी तो कोई मसला नहीं है, अंग्रेजी से परेशान ना होना खुदारा। उमैद भाई आप हमारे साथ क्लास में हैं? क्या समझ में नहीं आया सर, मुझे भी बताएं जरा, सर बोलें क्या समझ में नहीं आया। मैं वही चीज समझा दूंगा ना, टाइम खत्म हो गया, अनम्यूट करें सर। नहीं नरेशन तो मैंने पढ़ लिया, प्यारे भाई अनम्यूट करके बताएं, नरेशन तो मैंने पढ़ लिया। आपने बोला सर नरेशन समझ में नहीं आया, वो मैंने पढ़ लिया। नरेशन में क्या समझ नहीं आया मेरे दोस्त, मुझे ये बताओ। हाँ अनम्यूट करो ना मेरे भाई, मैंने आपको अनम्यूट करने की इजाजत दी है, आप अनम्यूट नहीं कर रहे यार, लोग तरसते हैं अनम्यूट करने के लिए। चलें जी आपकी मर्जी। आप, माइक खराब है तो बस फिर बात ही खत्म हो गई, छोड़ें फिर, जब माइक सही हो जाएगा तो मैं जवाब दे दूंगा, यही करता हूँ, अब क्या करूँ। उम्मीद इस तरह नहीं होता ना बेटा, ऐसा थोड़ी मैंने पूरी बात कर दी, अब आप आखिर में बोलो यार नरेशन क्या होती है समझा दें। आखिरी बार बोल रहा हूँ, प्लीज इस तरह नहीं किया करें, सही है, क्लास डिस्टर्ब होती है इस तरह। नरेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है ये जो ट्रांजेक्शन, ये जो एंट्री हमने बनाई है इसके बारे में लिखना शॉर्ट वर्ड्स में कि ये क्या हुआ है। तो हम सबसे पहले 2 वर्ड लिखेंगे, टू रिकॉर्ड, ये हमेशा फिक्स है ये लिखने। टू रिकॉर्ड लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे जो काम हुआ है। तो आपको पता है यहाँ क्या हुआ है, या वो भी नहीं पता क्या हुआ है? पता है आपको यहाँ क्या हुआ है? मालिक ने कारोबार शुरू किया 1 लाख रुपए लगा के, तो हमने उसे लिखा टू रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट, सिंपल। अगर आप लिखना चाहें टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय तहीर, तो आप गलत नहीं है। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ तहीर, तो आप गलत नहीं है। नरेशन बहुत तरह से लिखी जा सकती है, अंग्रेजी सर इमरान की जागीर नहीं है। आपको अंग्रेजी लिखनी आती है, शॉर्ट वर्ड्स लिखने हैं नरेशन में, एक्सप्लेनेशन में लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी। उमैद साहब आपके लिए समझाया था मैंने ये, और हमजा भाई के लिए। सर अगर आप दोनों को अभी भी समझ नहीं आया तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अब मैं आपको तन्हाई में समझा दूंगा, सही है। सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मुझे तो नहीं लगता कि आज होगी, आप चाहते हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ, आइए आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं, हिम्मत है तो कर लेते हैं। परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹20,000 कैश, बोलें क्या खरीदी, जल्दी बताएं क्या खरीदी। बेटा तवज्जो रखा करो ना उमैद, देखो अब टाइम वेस्ट हो गया ना,
मर्चेंडाइज खरीदनी, क्या कहते हैं मर्चेंडाइज खरीदने को प्यारे बच्चों? परचेजेस। परचेजेस, परचेजेस की नेचर, परचेजेस की नेचर एक्सपेंस, खरीदने से खर्चे में होता है, खरीदने से खर्चे में होता है इजाफा। एक्सपेंस बढ़े तो हमेशा, एक्सपेंस बढ़े तो हमेशा डेबिट। बहुत शुक्रिया, आप सबने परचेजेस डेबिट में लिखा। और किस पर खरीदा बताएं, किस पर खरीदा, जल्दी बताएं किस पर खरीदा प्यारे बच्चों? कैश पर। तो कैश हमारे पास से प्यारे बच्चों, कैश हमारे पास से प्यारे बच्चों चला गया। अच्छा सुने, खुदारा अच्छा हुआ कि ये पता चल गया। नरेशन लिखे, अगर नरेशन 2 लाइनों में आ रही है तो आप एक लाइन छोड़कर फिर ये लाइन ड्रॉ करेंगे इतनी, सिर्फ किस हिस्से में? पर्टिकुलर्स वाले हिस्से में। इंपॉर्टेंट बात है, सुन लें पूरी क्लास, दोबारा सुन ले, फिर बाद में आप अगर कोई बोलेगा दोबारा समझाओ तो मैं नहीं समझाऊंगा। आप नरेशन लिखने के बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हुए उसके नीचे वाले हिस्से में ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर, समझ आई? जैसे यहाँ लाइन ड्रॉ हुई हुई नजर आ रही है, एग्जैक्ट इस तरह, ठीक है। और सर अगर नरेशन 2 लाइनों में आए अंग्रेजी की, तो फिर आप उसके नीचे वाली लाइन में यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरी नरेशन इधर खत्म हो गई तो मैंने इसको लाइन को ब्लैंक छोड़ा और यहाँ लाइन ड्रॉ की, इसका मतलब है एक एंट्री कंप्लीट। अब मैंने लाइन ड्रॉ करके दूसरी एंट्री बना रहा हूँ। कौन? डेबिट, परचेज डेबिट आ गया। और क्या गया हमारे पास से? कैश, कैश क्रेडिट आ गया। कितने रुपए कैश बताओ? 20,000 रुपए का सामान खरीदा, 20,000 कैश हमारे पास से चला गया। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? शॉर्ट, शॉर्ट नरेशन टू रिकॉर्ड परचेजेस। शॉर्ट नरेशन क्या लिखे? टू रिकॉर्ड, कोई कंफ्यूजन? टू रिकॉर्ड परचेजेस। पूरे में लाइन ड्रॉ नहीं होगी अरीबा, आपको मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी। अब मिटाइए, पेंसिल से लाइन ड्रॉ किया ना, मिटाएं उस लाइन को, शाबाश। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब काम सुन लें, आपका क्या है? अब काम सुन लें, आपका क्या है? मुझे पता है आवाज थोड़ी सी स्लो हुई है, बट अब आप सुन लें। काम, काम यह है प्यारे बच्चों आप सबका, काम यह है प्यारे बच्चों आप सबका कि आप बाकी ट्रांजैक्शन पढ़ पढ़कर उनकी एंट्रीज के नीचे लिखेंगे और बनाएंगे। इंशाल्लाह बनाएंगे अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप जरूर। अच्छा सर अगर कहीं कुछ समझ नहीं आए तो पेंसिल से एंट्री लिख लेना, ताकि जब मैं बताऊं तो करेक्शन कर सको मेरे साथ साथ। मेरी बात सुनी मैंने क्या कहा? हमाद हनीफ साहब लेफ्ट हो गए थे, उन्हें कोई बता देना बाद में। जी डेबिट हमेशा पहले आएगा, डेबिट हमेशा इसलिए पहले आएगा इफ्रा कि डेबिट का कॉलम पहले है मेरा बेटा, सही है? तो डेबिट हमेशा पहले आएगा, उसके बाद क्रेडिट आएगा, राइट? ओके। हम्माद हनीफ लेफ्ट हो गए थे, उनका दोस्तों ने बाद में बता दे कि होमवर्क क्या है। होमवर्क ये है कि आपने इस सवाल की बाकी ट्रांजैक्शन पढ़कर उसकी एंट्री यहाँ बनानी है। किसी एंट्री में अगर आप फंसे, आपको समझ नहीं आए, तो आप उस एंट्री को पेंसिल से लिखेंगे, अदरवाइज आप ब्लू पेन से काम कर रहे हैं सारा, और लाइनें पेंसिल से ड्रॉ हुई हैं सारी। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके जी, हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मंडे को मुलाकात होगी। आप जरूर काम कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ्रॉम माय साइड फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।